Good morning, students. Welcome to the class of online session of science. Now, in the form of science, we are discussing lots of chapters is based on the production of crops. Now, first of all, if we are discussing about the crop is one of the most important substance which should be used as a part of food our daily life. For example, different type of food as a crops we have generally used and which provide the different type of nutrition. For if we consider that if we use the rabi crops or maybe you will just take the kharif crops, different type of crops that should be used in a different type of seasons like winter season, rainy season, summer season, different type of crops that can be cultivated. This type of crops have an individuals and variety of nutritions that they provided. For example, if we use the carbohydrates which provide the different type of the nutrition, pulses provide the proteins, vegetables, fruit which provides the vitamins, oily seeds that provides the fats, the different type of crops that should be provide the different type of food substances. So if we consider into modern situations in the modern day of time, if we see that the population that should be grow very faster in our country, just see that population that should be cross 1.3 billions, more than 1.3 billions if we consider that. So and the more and more peoples that have been generally available in a form of our country, so there is a scarcity of land, because if more and more population that can be generated, there is a scarcity of land, because if the populations are there, they have to be use that space which is available for their shelters, अपने घर के लिए उसका यूज़ करेंगे for preparation of homes, डैम्स, रोड्स एट्सेट्रा, इन सब के लिए आप उसका यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग योर मॉडर्न लाइफ इज लग्जरेबल. सो दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेज मे बी वी कट मोर एंड मोर ट्रीज फॉर व्हाट, फॉर प्रिपेयरिंग डैम्स, रोड्स एट्सेट्रा, कंपनीज मेकिंग द शेल्टर्स. सो generally we use this type of substances to make our life luxuriable. But what about the crops? If we do not get the food properly, okay, so that should be create the malnutrition in our body, because we don't get the proper nutrition in our body. So that is a malnutrition, and that is a defect of the growth in our body. That should be one of the cause for the death. If there is no any nutrition or properly formation in our body, it cannot be give you so much energy, because food is the one of the source of energy. So energy we get from the food. Each and every living organisms who are surviving on this atmosphere, they generally require the energy for survive their self. So energy in perspective what? Each and every activity which is done by our body, like involuntary functions जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं, ये वॉलेंट्री फंक्शंस जो हम बाहर की तरफ देख सकते हैं, लाइक वॉकिंग, सिंगिंग, डांसिंग एट्सेट्रा, दिस ऑल आर रिक्वायर द एनर्जी टू परफॉर्म दिस. इफ योर स्टडीज and if you not feeling well, it means energy is not available in your body, you cannot be concentrated in studies. So each and every activities that is done by the body or done inside the body, which all are done by the energy, and energy which is required for the food. So it is a very important, so whatever the number of population that is available to fulfill them this type of food requirement, so we have to use modern techniques of agriculture. Generally agriculture is based on, in the later on the techniques, we have to be adapted more modern methods to be fulfill the requirement of these crops, because whatever the number of population that can be increased in a recent days, it not been created so much yield in a crop production, because जितना ज़्यादा आपका population increase हो रहा है, उतना ज़्यादा हमारा crop production implemented नहीं हो रहा है, उतनी higher yield यानी productivity जो है crops की वो implement नहीं हो पा रही है. तो उसके लिए क्या करेंगे? What we have to do to provide such kind of the basic requirement of food to each and every individual persons. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? We have to be use modern method for the agriculture, क्योंकि we have a scarcity of land, कि जितने ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होते जाएंगे उतना ज़्यादा लैंड ऑक्यूपाई करते जाएंगे वो अपने लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए, जिसमें वो कंस्ट्रक्शंस करते हैं, इंडस्ट्रीज़ का डैम्स बनाते हैं, वाटर रिजर्वर बनाते हैं, रोड बनाते हैं एट्सेट्रा. बहुत तरह के ऐसी एक्टिविटीज़ में वो अपने वो जो स्पेस है उसका वो यूज़ करते हैं. तो जितना पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उतनी स्कैरिटी हो रही है लैंड की. अगर लैंड की स्कैरिटी होगी तो एग्रीकल्चर में क्रॉप्स कहाँ से प्रोडक्ट होगा? व्हेन वी कैन बी इंक्रीज सच काइंड ऑफ द गुड क्रॉप्स. तो उसके लिए हमें प्रॉपरली मॉडर्न एग्रीकल्चर जो है उसका यूज़ करना पड़ेगा. इन द मॉडर्न eras we have to use some scientific methods which we have to adapt in our life
फॉर द मेकिंग ऑफ चेंजेस इनटू द सच अ लार्ज यील्ड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, उसके लिए हमें उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो क्रॉप प्रोडक्शंस के अंदर हम देखते हैं कि बहुत चीज़ें ध्यान रखती है। दैट इज, जैसे एक सिंपल एग्जांपल देखिए, इंडिया दैट हैज़ अचीव्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन इन 1970s, 1970s के अंदर उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन अचीव किया था। स्पेसिफिक वीट, जो गेहूँ की खेती होती, वीट की जो प्रोडक्शन थी, in the production of wheat in 1970s they generally use the green revolution, such a large kind of productivity from the good quality they have to produce in 1970. तो what are the measures, कौन से ऐसे measures उन्होंने अडॉप्ट किए थे जिसके वजह से इस तरह के हायर yield of quality उन्होंने प्रोडक्ट की थी। So India that achieved the green revolution in 1970s by using the certain basic things which they have to adapt, जिसमें सबसे पहला था crop variety improvement। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, कि क्रॉप की वेराइटी को कैसे इंप्रूव करना है। उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। देयर इज अ 3 स्पेसिफिक मेथड which India has adopted into 1970 for the green revolutions. One is the crop variety improvement, the variety that can be different type of varieties of crop, as well as crop production management and crop protection management. These are the 3 basic terms which they have to be adopted to generate the higher yield of productivity. So in which first we are discussing about what is called crop variety improvement. Variety मतलब क्या, अभी देखो, अभी if you somewhere go in a market, आप अलग अलग varieties के कपड़े देखते हो, different type of varieties, कोई लोअर कैटेगरी के होते हैं, कोई थोड़े मिडिल एवरेज होते हैं, कोई हायर कैटेगरी होते हैं, डिफरेंट टाइप। आप एक शूज़ या सैंडल लेने भी जाते हो तो उसमें अलग अलग वेराइटीज़ होती है, कोई अच्छी क्वालिटी का होता है, कोई लो क्वालिटी का होता है, कोई मिडिल क्वालिटी का। वैसे भी क्रॉप के अंदर होता है, क्रॉप हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटी, क्रॉप के अंदर भी वेराइटी होती है। सो क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट का मतलब क्या, इंप्रूवमेंट मतलब क्या, इंप्रूवमेंट मतलब चेंजेस। सो इफ अगर हमें क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, सो इफ यू वांट टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ क्रॉप, इट ऑल्सो रिक्वायर द क्वांटिटी। सो इट जनरली रिक्वायर द क्वालिटी एंड क्वांटिटी फॉर द क्रॉप इंप्रूवमेंट। अगर आप क्रॉप को इंप्रूव करना चाहते हैं तो इट जनरली रिक्वायर द क्रॉप क्वालिटी एंड इट्स क्वांटिटी। ऐसा नहीं कि केवल हम क्वालिटी में चेंज करेंगे और क्वांटिटी नहीं, अगर केवल क्वांटिटी इंक्रीज करना है तो क्वालिटी भी मेंटेन करना पड़ेगा। सो जनरली फॉर मेकिंग अ स्पेसिफिक फॉर्मेशन टू improve the quality and quantity both having a crop in a simple production, so it is necessary to select such a variety of crop which generally provide the higher productivity, higher yield. If you want to improve the quality as well as quantity of a crop, you have to be select such kind of productivity of the crops which provide the higher yield. जो ज़्यादा प्रोडक्शन इंप्लीमेंट करता हो वैसे हमें सिलेक्ट करना होगा, एज वेल एज इट हैव अ बायोटिक और अबायोटिक रेजिस्टेंस, ये उसके अंदर अवेलेबल होना चाहिए। क्रॉप्स के अंदर भी देखो बहुत तरह के इफेक्ट्स होते हैं, क्रॉप्स के अंदर भी डिफेक्ट्स आते हैं, उसके अंदर भी डिजीज होते हैं, उस पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट करते हैं, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। So it is a regard to art of working on this type of the crop production which we generally have to be required. So we have to select some of the crops which provide the higher yield, it generally having the productivity good, generally control the biotic or biotic resistance, or we have some use the breeding method. कुछ crops ऐसे होते हैं ना, some of the crops जो productivity काफ़ी high करते हैं, कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो क्वालिटी काफ़ी अच्छी करते हैं लेकिन क्वांटिटी लो करते हैं, किसी की क्वांटिटी हाई होती है, क्वालिटी लो होती है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमें डिजायर्ड फंक्शन चाहिए, इफ यू वांट टू डिजायर्ड फंक्शन फ्रॉम द प्लांट्स विच प्रोवाइड द हायर क्वालिटी एज वेल एज कंटेंट द क्वांटिटी, वी हैव टू बी एडॉप्ट द ब्रीडिंग मेथड, जिसको हाइब्रिडेशन मेथड कहते हैं। सो बाय यूजिंग दैट हाइब्रिडेशन मेथड्स वी हैव जनरली यूज दिस टाइप ऑफ टेक्निक्स। तो अगर मुझे क्रॉप का वेराइटी इंप्रूव करना है, इफ यू वांट टू प्रोवाइड द क्रॉप वेराइटी विच टॉपिक्स दैट वी हैव टू टेकन इन माइंड, तो क्रॉप की वेराइटी अगर मुझे इंप्रूव करनी है तो जनरल टॉपिक्स मैंने जो लिखा है जिसमें हायर यील्ड, improve quality, biotic or biotic resistance, changing into the mature duration and wider adaptability, ये सारे टॉपिक्स हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। If we consider this type of things in our mind, that should be generally helpful to improve the quality and quantity of the crops. जिसमें पहला है higher yield. Higher yield का मतलब क्या होता है? What do you mean by higher yield? So main aim क्या होता है हमारा? If we want to going into the part of the agriculture, what is our main criteria and main aim? Generally, the main aim of controlling this type of crops is having a good quality and quantity of crops, higher productivity. अगर आप किसी भी क्रॉप को सिलेक्ट कर दें तो पहला प्रायोरिटी होता है कि दैट प्रोवाइड द गुड अमाउंट ऑफ क्रॉप्स, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। सो हायर अमाउंट ऑफ फील्ड एज वेल एज प्रोवाइड द गुड क्रॉप,
इसके लिए क्या होगा, आप यूज़ करेंगे ऐसे अच्छी इंप्रूव क्वालिटी के सीड्स के. इफ़ यू वांट टू जनरेट मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ फील्ड ऑफ क्रॉप, यू हैव टू सिलेक्ट अ गुड क्वालिटी ऑफ सीड. अगर सीड अच्छी क्वालिटी का होगा तो उसका जर्मिनेशन अच्छा होगा और उसके साथ साथ जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है वो भी फूड की इंप्रूव होती है. तो इट शुड बी सिलेक्ट अ प्रॉपर वेराइटी ऑफ द सीड्स दैट कैन बी बेसिक हेल्प टू बी क्रिएटिंग द गुड अमाउंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. उसके बाद आता है इम्प्रूव क्वालिटी. इम्प्रूव क्वालिटी में क्या होता है कि आप देखिए क्रॉप टू क्रॉप ईच एंड एवरी सब्सटेंस हैव अ चेंजेस इनटू बेसिक रिक्वायरमेंट्स. अलग अलग क्रॉप्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस. Each and every crop have different type of their characteristics, different type of their improvement in the production of yields. So each and every crop there is a variety of yield to yield. हालांकि के अंदर चेंज होता है. For example, if you want to take pulses, pulses has a good quality of protein that contain the proteins. Or maybe we consider that like oily seeds. Oily seeds most of it they contain the fats. So if we contain that kind of productivity of yield, so its quality, उसकी जो क्वालिटी है इम्प्रूव क्वालिटी दैट शुड बी मेंटेन. तो इट इज़ अ बेसिक थिंग कि वॉट एवर द सीड्स यू हैव टू सिलेक्ट इट हैविंग अ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन. अगर आपने पल्सेस लिए हैं इट मोस्टली प्रोवाइड द गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट लिए हैं या उसके अलावा आपने अगर ऑयली सीड्स लिए हैं तो उसके अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं कि वो प्रोटीन्स प्रोवाइड करे या फैट प्रोवाइड करे या ऑयल सीड प्रोवाइड करे, दैट जनरली हैविंग द गुड क्वालिटी. नेक्स्ट इज बायोटिक और बायोटिक रेजिस्टेंस. बायोटिक और बायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारे पे अलग अलग तरीके के वायरस है या फिर फंगल इन्फेक्शंस है या अलग अलग तरीके के डिजीज होते हैं जो वायरल फॉर्म में है, वो अगर हमारे बॉडी पे इम्प्लीमेंटेड होता है सेम एज इट इज दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन टू द प्लांट. प्लांट के अंदर भी इस तरह के बायोटिक्स और बायोटिक रेजिस्टेंस यानी ऐसे सच फैक्टर्स होते हैं जो उन पे इफेक्टेड करते हैं. तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे बायोटिक फैक्टर के अंदर हम देखते हैं कि बायोटिक फैक्टर्स के अंदर बहुत तरह के ऐसे रीजंस होते हैं जिसमें वॉर्म्स एक ऐसा रीजंस होता है जो प्लांट्स को इफेक्ट करता है, उसके रूट्स को स्क्रैप करता है या फिर उसके स्टीम्स को, ऐसे तरीके की क्रॉप्स को खराब करता है. ऑल्सो दैट क्रॉप्स हैविंग सफरिंग फ्रॉम द अबायोटिक्स रेजिस्टेंस. अबायोटिक रेजिस्टेंस में क्या होता है, जैसे कभी सॉइल की क्वालिटी अच्छी ना हो, दे डू नॉट गेट प्रॉपर फॉर्म ऑफ वाटर, सनलाइट प्रॉपर ना मिल रहा हो, फर्टिलाइजर्स प्रॉपरली ना हो, तो उसके वजह से ये सारे डिफेक्ट्स जो होते हैं उस प्लांट के अंदर भी देखने को मिलते हैं. सो वी हैव ऑल्सो टेकन केयर कि वो जो सीड आप सिलेक्ट करते हो उसमें ये तरीके के फैक्टर्स रेजिस्टेंस होने चाहिए. नेक्स्ट, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन. अभी क्या होता है कि क्रॉप्स प्रोडक्शन के साथ साथ दैट इज द मेन थिंग हाउ टू इंक्रीज द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ फार्मर्स. दैट इज द मेन थिंग. इफ यू आर गोइंग इन टू द क्रॉप प्रोडक्शन, द मेन थिंग कि we just provide more and more yield as well as earn more and more money as a part of the financial income. So it is a maturity duration, so we have to take in such kind of crops which have a short duration. So by harvesting and cropping we have creating more and more crops in such a single field that should be provide more beneficial to the farmers. Last is wider adaptability. Now wider adaptability means what? If that kind of crops are not being selected onto the certain areas. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गोइंग इन टू द हिल स्टेशन पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे रेनफॉल काफ़ी होता है और वहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो कुछ क्रॉप्स होते हैं कि वैसे सीजन्स में काफ़ी अच्छे ग्रो करते हैं, पर जैसे उनको आप इस तरफ लेके आए, वो मूविंग ऑन टू द वेस्टर्न डायरेक्शन, वहाँ पे हीट ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कहीं पे जाएंगे तो सॉइल क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो इस दैट टाइप ऑफ क्रॉप्स इज एक्सेप्टेड हियर. तो हमें इस तरह का क्रॉप भी सिलेक्ट करना होगा कि जिसकी एडेप्टेबिलिटी जो सब लोग उसको इजीली एक्सेप्ट करें, तो दैट इज जनरली कॉल्ड एज अ वाइडर एडेप्टेबिलिटी. तो हर जगह उसका एडेप्शन होना चाहिए. तो अगर मुझे क्रॉप्स का वेराइटी को इम्प्रूव करना है, इफ़ वी आर चेंज, देखो अभी आप राइस में भी अलग अलग तरीके के राइस आते हैं. अभी कभी आपके पेरेंट्स से आप पूछेंगे तो विल गो इन द मार्केट, देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ राइसिस, वीट्स, अलग अलग तरीके के जो आपके ग्रेन्स हैं उसमें अलग अलग तरीके के वेराइटीज़ मिलते हैं. तो क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, अगर आप वेराइटी को चेंज कर रहे हैं तो ये सारे सर्टेन क्राइटेरियाज दैट वी हैव टू टेकन इन माइंड कि वी हैव टू प्रोवाइड हायर यील्ड, we have to also improve the quality, we have also be maintain their biotic resistance, also we have to be change in the maturity durations or wider adaptability. These are the certain conditions which generally provide the crops to acceptable more and more as a part of the crop variety improvement. उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको समझाया
कि इन आवर कंट्री देयर इज अ लार्ज ग्रुप्स ऑफ क्रॉप्स दैट इज अवेलेबल। अलग अलग तरह के क्रॉप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स दैट कैन बी सीन इन अवर कंट्री, एंड ईच एंड एवरी क्रॉप्स हैव अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अलग, जैसे एक एग्जांपल है फ्लावर्स का। इफ यू सी दैट देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स, रोज के फ्लावर आपको दिखेंगे रेड कलर के, या उसके अलावा आप देखिए तो पिंक कलर के भी आपको फ्लावर्स दिखते हैं रोज के, या फिर वाइट कलर के भी दिखते हैं। अलग अलग कलर्स में आपको रोज दिखता है। तो इज इट पॉसिबल कि अलग अलग कलर? नहीं, देयर इज अ सर्टेन क्राइटेरिया जिसका हम यूज करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर। सो इफ यू वांट टू बी अ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द क्रॉप एंड ईच अ क्रॉप हैविंग अ सर्टेन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या करते हैं, दैट वी हैव टू मिक्स टू ईच अदर एंड क्रिएट अ स्पेसिफिक न्यू ऑर्गेनिज्म, जिसको हाइब्रिडिजन कहते हैं। यानी दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिजम्स को अगर आप मिक्स करते हैं एंड यू जनरेट अ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द स्पीसीज, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडिजन। तो हाइब्रिडिजन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द हाइब्रिडिजन? हाइब्रिडिजन इज जनरली साइंटिफिक मेथड। एक तो ऐसे अपने मन से तो हम हाइब्रिड कर नहीं सकते किसी भी क्रॉप को, इट इज हैविंग अ साइंटिफिक मेथड। तो hybridization is a scientific method which generally obtain a desired characteristics from the plant by making the cross breeding of two or more plants, that is called hybridization. Okay, hybridization is a scientific method in which we obtain a desired characteristics from the two or more plants, obtaining by making their cross breeding. उन दोनों के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करके हम उसके अंदर से डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्टेन करते हैं, उसको हम ब्रीडिंग मेथड कहते हैं। तो हाइब्रिडिजन जो होता है वो क्या करता है, दैट शुड बी अ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ प्लांट। हाइब्रिडिजन उसका जो जेनेटिक्स वैल्यू होता है उसको वो चेंज करता है। तो नया प्लांट जो होता है उसको आप हाइब्रिड प्लांट कहते हैं। तो हाइब्रिड प्लांट जनरली अ चेंज ऑफ द जेनेटिक प्लांट्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हाइब्रिड प्लांट, उसको हाइब्रिड प्लांट कहते हैं, जिसमें हम दो अलग अलग प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू मिक्स करते हैं और एक नया प्लांट को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम आवर डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल अभी आप देखो कि राइस का ही अगर मुझे एग्रीकल्चर करना है, इफ यू वांट टू पार्ट ऑफ राइस एग्रीकल्चर, राइस का क्रॉप अगर मुझे इंप्लीमेंट करना है, तो अभी हम जाते हैं पंजाब या हरियाणा रीजन्स के अंदर जाते हैं, वहाँ पर राइस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी बड़े बड़े राइस होते हैं लाइक बासमती राइस और ये सब राइस। हमारे यहाँ की क्वालिटी कुछ और होती है। तो बासमती राइस की जो क्वालिटी है वो और क्वांटिटी कुछ राइस की ऐसी होगी कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो और बासमती राइस का प्रोडक्शन कम हो, तो हम क्या करेंगे, उसकी क्वालिटी और इसकी क्वांटिटी दोनों को हाइब्रिड करेंगे, तो एक नए तरीके का डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा जिसमें क्वालिटी क्वांटिटी दोनों मेंटेन होती है, जिसको हम हाइब्रिड प्लांट कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिड प्लांट। अभी हाइब्रिडिज्म जो होता है दे हैव 3 टाइप्स, 3 तरीके का हाइब्रिडिज्म मेथड है। पहला इंटरवेरिएटल हाइब्रिडिज्म, सेकेंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडिज्म और थर्ड होता है इंटर जेनेरिक हाइब्रिडिज्म। देयर आर 3 टाइप ऑफ हाइब्रिडिज्म, इंटरवेरिएटल, इंटर स्पेसिफिक और इंटर जेनेरिक, 3 तरीके के हाइब्रिडिज्म मेथड होते हैं। पहले हम डिस्कशन करते हैं इंटरवेरिएटल के बारे में। तो अगर हम देखते हैं कि इंटरवेरिएटल मीन्स व्हाट, इस तरह के जो हाइब्रिडिज्म होते हैं इंटरवेरिएटल, इन दिस टाइप ऑफ द hybridization that should be done between 2 or more variety of given species. There is only one species, एक ही species के एक से ज़्यादा varieties होते हैं। So if the hybridization that can be done between 2 different variety of the same species of plant, that is called as a hybridization of intervarietal. So same species के 2 अलग अलग varieties हैं। If like a rice के अलग से 2 अलग अलग variety है और इसी एक ही species का from a single species of the 2 different varieties having a cross breeding and generate a new specific plant, that is called intervarietal। 2 अलग अलग variety but same species, एक ही species के 2 अलग अलग varieties के बीच में if you making the hybridizations for the obtaining a desired characteristics, that is called intervarietal hybridization। most of the इसमें क्या होता है कि जो सेरल्स होते हैं, सेरल्स है या पल्सिस है, ऐसे जो हाइब्रिडिजेशंस होते हैं ना उसमें हम इस तरह के इंटरवेरिएटल का यूज़ करते हैं। The intervarietal hybridization that should be mostly used into the crops of cereals, और ये जो hybridization होता है the development that give the higher yield, that have also be a resistance from the disease, its quality is good, as well as it should be provide the required nutrition from it। तो जो उसकी प्रोडक्शन हाई होगी, न्यूट्रिशन प्रॉपरली देगा, उसकी क्वालिटी हाई होगी, रेजिस्टेंस यानी कि जो डिजीज रेजिस्टेंस जो बायोटिक फैक्टर है उससे भी अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। सो दैट इज द फर्स्ट मेथड जिसको हम कहते हैं इंटरवेरिएटल हाइब्रिडिजेशन। दूसरा होता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडिजेशन।
इंटर स्पेसिफिक मतलब क्या, दो अलग अलग जो स्पीसीज है बट सेम जीन्स. इफ द हाइब्रिडेशन दैट कैन बी डन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज बट हैविंग अ सेम जीन्स, एक ही जीन्स के दो अलग अलग स्पीसीज है और उनके बीच में अगर आप हाइब्रिडेशन करते हैं देन इट इज कॉल्ड एज द इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन. इंटर वेरिएटल में क्या था, एक ही स्पीसीज के दो वेराइटी. इंटर स्पेसिफिक में क्या करना है, दो अलग अलग स्पीसीज बट एक ही जीन्स के, उसको आप इंटर स्पेसिफिक फॉर्मेशन कहते हैं. इस तरह जो होता है, जैसे ड्राफ्ट है, पानी की कमी है या अलग अलग सीजन्स चेंज होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी ये अपने आप को इम्प्लीमेंट कैसे. कौन कौन से ऐसे क्रॉप्स है जो हम इंटर स्पेसिफिक लेते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वीट्स है, टोमेटोज है, शुगर कैन है. ऐसे सारे जो क्रॉप्स होते हैं ना, दे शुड बी मोस्टली यूज एज अ इंटर स्पेसिफिक, एक ही जीन्स के दो अलग अलग स्पीसीज के बारे में होता है. उसके अलावा हम देखते हैं तीसरा जो हमारा इंटर जेनेरिक, दो अलग अलग जीन्स के बीच में, ओके, दो अलग अलग जीन्स के बीच में अगर आप क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं प्लांट्स के, उसको आप क्या कहते हो, इंटर जेनेरिक कहते हो. इस इंटर जेनेरिक के अंदर से हमें अलग अलग तरीके के फॉर्मेशन से, मान लीजिए राइस है, राइस जैसे क्रॉप्स कौन कौन से, जैसे सैरल्स है, सैरल्स आपका क्या है, कॉमोडिटीज़ है. अब सैरल्स के अंदर अलग अलग तरीके के क्रॉप्स मिलते हैं, जिसमें राइस है, मेज़ है, उसके अलावा आप देखो तो वीट है, ऐसे अलग अलग है. अब इनके बीच में जब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो राइस में भी कस्तूरी राइस मिलती है आपको, बासमती राइस मिलती है. उसके अलावा वीट्स के अंदर आप देखो तो कल्याणी है, और उसके बाद आप देखो तो सोनालिका है, मेज़ के अंदर भी नवजोत है. ऐसे अलग अलग तरीके के हमें सब्सटेंसेस मिलते हैं. तो हाइब्रिडिजेशन इज व्हाट, जनरली एक या एक से ज़्यादा प्लांट्स के बीच में या उसके वेराइटीज़ या स्पीसीज या जीन्स के बीच में अगर आप डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्टेन करने के लिए जो आप क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, उसमें से जो नया प्लांट्स मिलता है उसको आप हाइब्रिड प्लांट कहते हैं. दैट हाइब्रिड प्लांट जनरली कंटेन गुड अमाउंट ऑफ क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी एंड द हायर प्रोडक्टिविटी, ऑल्सो हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ द डिजीज. तो दिस इज जनरली अबाउट द हाइब्रिडेशन मेथड. अभी इसके बाद हम देखते हैं कि फार्मर्स के बारे में. फार्मर्स कैसे होते हैं, जैसे अभी तो प्लांट्स, फार्मर्स को भी आप तीन अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड करते हो. फार्मर्स जैसे आप देखो तो एक स्मॉल फार्मर्स होते हैं, मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, प्रोग्रेसिव. सो इंडिया, in our country, India has a large cultivations area, almost 3/4 population that are engaged into the agriculture. 3/4 populations are mostly engaged into the agriculture from, so largely our country is dependent onto the agriculture formation and they are mostly engaged into the cultivation. So India, in our country, the farming has been done into the small and large farms. जो फार्मिंग होती है वो दो तरीके के फॉर्मेशन होती है. इट शुड बी ऑल्सो फॉर्म इन अ स्मॉल फार्म्स और मे बी लार्ज फार्म्स. तो फार्मिंग दैट कैन बी डन ऑन टू द स्मॉल फार्म्स और लार्ज फार्म्स. तो उसके अकॉर्डिंग टू हम क्या करते हैं, टिपिकली द फार्मर्स दैट कैन बी डिवाइडेड ऑन टू द सर्टेन रेशियोज, उस पर भी हम डिवाइडेड करते हैं, जिसमें स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स एंड प्रोग्रेसिव फार्मर्स, तीन तरीके के फार्मर्स हम कंसिडर करते हैं. तो अभी ये फार्मर्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, फाइनेंशियली नहीं, उसके लिए कितना उनके पास स्पेस है, हाउ मच लैंड दे हैव टू ऑक्यूपाई, इफ दे आर यूजिंग द मॉडर्न टेक्निक और नॉट, हाउ मच अमाउंट दे हैव, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है. सो दिस आर द जनरल क्राइटेरिया जिस पे से हम अलग अलग तरीके के फार्मर्स को क्लासिफाइड करते हैं. तो जिसमें आप देखिए कि उसका हाउ मच फार्म दे कैन बी होल्ड, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसके अलावा मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड का यूज़ करता है कि नहीं करता है. इन सारे फॉर्मेशन से हम क्या कर सकते हैं, फार्मर्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं. तो ये हो गया आपका स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के बारे में. तभी फार्मर्स जो होते हैं वो अलग अलग सीजन्स के अंदर अलग अलग तरीके के क्रॉप्स इंप्लीमेंट करते हैं. जैसे मैंने आपको बोला कि विंटर सीजन्स के अंदर जो अलग तरीके के क्रॉप्स हैं, समर में अलग होता है, रेनी सीजन्स में अलग होता है, जिसको हम दो तरीके से क्रॉप्स कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स और एक रैबी क्रॉप्स. दो तरीके के क्रॉप्स होते हैं, रैबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स, और ये दोनों का इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग तरीके के क्रॉप प्रोडक्शन में होता है. तो आज केवल इतना ही डिस्कशन करते हैं अबाउट द क्रॉप प्रोडक्शन, हाउ वी कैन बी इम्प्रूव द क्रॉप क्वालिटी, हाइब्रिडेशन क्या है एंड फार्मर्स को कैसे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं. व्हेन वी डिस्कस टुमारो, जब हम डिस्कशन करेंगे, वी डिस्कसिंग अबाउट द मेथड्स विच शुड बी यूज एज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें सॉइल को क्यों शॉ करना है, सीड्स का फॉर्मेशन क्या है, प्लगिंग क्या है, सोइंग क्या है, हार्वेस्टिंग क्या है. दिस आर द टॉपिक्स वी डिस्कस टुमारो, एज वेल एज व्हाट इज मैन्यूअर, व्हाट इज फर्टिलाइजर्स, व्हाट इज इरिगेशन, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड है वो हम डिस्कशन करेंगे कल. केवल आज हमने तीन टॉपिक डिस्कशन किया है. वन इज क्रॉप इम्प्रूवमेंट, हाइब्रिडेशंस एंड द
classification of farmers. Okay, so we'll discuss tomorrow another topic about the preparation of crops. Before preparation of crops into cultivated, with certain criteria we have to adopt it. Okay, till today only this topic discussion. We'll meet you tomorrow. Bye.